بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں ترجمہ اور آواز ڈاکٹر ساجد صدیقی۔ مکمل بھگوت گیتا کا اردو زبان میں ترجمہ شریمد بھگوت گیتا، یعنی امن، سلامتی اور سکون دینے والی ہدایات پر مبنی خدا کا بیان۔ ساتواں باب، ساتواں ادھیائے۔ علم یعنی گیان اور حکمت یعنی وگیان۔ ایک خدا میں مکمل یکسوئی یعنی سدھی۔ دنیا اور آخرت میں فرق۔ خدا کی نشانیاں۔ کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ اے پارتھ یعنی ارجن، مجھ میں اپنے من کو لگاتے ہوئے، وقت کی پابندی کے ساتھ ایک خدا میں یکسو ہوتے ہوئے، میرا سہارا لے کر، شک نہ کرتے ہوئے، خدا کی اطاعت کرتے ہوئے، مجھے جس طرح مکمل طور پر جان سکتے ہو وہ سنو۔ یہ علم اور اس کے ساتھ حکمت کو مکمل طور پر تم سے میں کہوں گا، جسے جان کر اس دنیا میں آگے اور دوسرا کچھ جاننے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ہزاروں انسانوں میں قلیل لوگ مکمل طور پر ایک خدا میں یکسو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلا شبہ ایسے یکسو رہنے کی کوشش کرنے والوں میں سے کوئی ایک ہی میری حقیقت جان پاتا ہے۔ بے شک مٹی، پانی، آگ، ہوا، آسمان یعنی خلا، اسی طرح انسان کا نفس، عقل اور انسان کی تمام مخلوقات پر برتری، اس دنیا میں 8 مختلف قسم کی میری قدرت کو سب سے اعلیٰ ثابت کرنے والی نشانیاں ہیں۔ لیکن اے قوی بازو والے یعنی ارجن، اس ادنا دنیا کے علاوہ میری قدرت کی نشانی آخرت کو جاننے کی کوشش کرو، جو میری سب سے اعلیٰ قدرت کی نشانی ہے، جس پر اس دنیا کا اور اس دنیا کی تمام مخلوقات کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ توحید۔ خدا کی صفات اور اس کی نشانیاں، خدائی منصوبہ اور قیامت۔ اسی طرح ان دونوں یعنی دنیا اور آخرت پر تمام انسانی نسلوں کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار بھی ہے، اور میں اکیلا دنیا کی ابتدا اور اس کی قیامت کرنے والا ہوں۔ کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ اے دولت پر فتح پانے والے یعنی ارجن، مجھ ایک خدا سے اعلیٰ دوسرا کوئی ہرگز نہیں ہے۔ مجھ ایک دھاگے کے سہارے یہ پوری دنیا تسبیح کے دانوں کی طرح ٹکی ہوئی ہے۔ میرے اس دعوے کے ثبوتوں کو میری مندرجہ ذیل تخلیقات میں دیکھو۔ اے کنتی کے بیٹے، میں پانی کا ذائقہ ہوں، چاند اور سورج کی روشنی ہوں، تمام ویدوں میں اوم ہوں، آسمان کی تسبیح ہوں، انسان کی صلاحیت اور استطاعت ہوں، زمین کی اصلی خوشبو ہوں، اور آگ کی تجلی ہوں، اور تمام مخلوقات کی جان ہوں، اور خدا کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کا جہاد میں ہوں۔ اے پارتھ، تمام مخلوقات کا ازلی تخم یعنی بیج مجھے ہی جانو۔ عقل والے دانشوروں کی عقل میں ہوں، روشنی دینے والوں کی روشنی میں ہوں۔ اے بھرت میں سب سے اعلیٰ، میں طاقتور لوگوں کی وہ طاقت ہوں جو خواہش پرستی اور غصے اور ہوس سے پرے ہے۔ میں مخلوقات کی ایسی خواہش ہوں جو دین کے خلاف نہیں ہے۔ فجور والے تینوں گنوں کے ذریعے انسانوں کا امتحان لینا خدا کا منصوبہ ہے۔ خدا تینوں انسانی گنوں سے پرے ہے۔ خدا انسان نہیں ہے۔ تینوں گنوں یعنی نیکی، بدی اور گمراہی پر مبنی فطرت الشیطان یعنی فجور، علم دین کے ذریعے
खुदा की पनाह लेना इम्तिहान का हल है। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि बेशक ये जो नेकी, बदी और गुमराही की फुजूर वाली इंसानी सिफात हैं वो भी मेरे जरिए ही तख्लीक की गई हैं, लेकिन तुम ये इस तरह समझ लो कि मैं इन 3 किस्म की सिफात रखने वाले इंसानों जैसा या इन इंसानों में से नहीं हूँ, और ये सिफात रखने वाले इंसान मुझ जैसे भी नहीं हैं। खुदा की तख्लीक करदा इन तीनों फुजूर वाली इंसानी सिफात में फंसकर ये तमाम दुनिया के इंसान उलझन, बेचैनी और बदअमनी का शिकार हो गए हैं, क्योंकि इन तीनों इंसानी सिफात से परे मुझ लाफानी खुदा को नहीं जान पा रहे हैं। बिलाशुबा मेरे जरिए तख्लीक करदा हर इंसान में इल्हाम की गई फुजूर वाली इन तीनों रूहानी और फितरी सिफात पर मबनी मेरे इम्तिहान को पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोग मेरी पनाह में आ जाते हैं, यानी मेरी इबादत करने लगते हैं, वो इस आजमाइश या इम्तिहान को बिलाशुबा पार कर जाते हैं। इस इम्तिहान या खुदाई मंसूबे से पार कराने वाले इल्म दीन को शैतानी फितरत की पनाह लेने वालों से शैतान ने इल्म दीन को अगवा कर लिया है, क्योंकि ये जाहिल, बदकार और जहन्नम में गिरने वाले इंसान मेरी इबादत करते हुए मेरी पनाह या मेरा सहारा नहीं लेते। तौहीद। एक खुदा की इबादत इंसान का मकसद हयात है। सब्र के साथ एक खुदा की इबादत करने वाला आलिम खुदा को सबसे ज्यादा महबूब है। कृष्ण यानी वासुदेव एक खुदा के सहारे जीने वाले अजीम इंसान और नायाब आलिम दीन हैं। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि ऐ अर्जुन, ऐ भारत में आला 4 किस्म के आमाल सालिहा करने वाले इंसान मुझे तस्लीम करते हैं या मुझ पर ईमान रखते हैं। पसमानदा लोग, इल्म की जुस्तजू करने वाले लोग, सिर्फ जायज़ और ज़रूरी अशिया की ख्वाहिश रखने वाले लोग और आलिम दीन। इन चारों में जो आलिम सब्र के साथ एक खुदा की इबादत यानी भक्ति में लगा रहता है वो सबसे अफजल है, क्योंकि इस आलिम को मैं सबसे ज़्यादा प्यारा हूँ और वो भी मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। बेशक ये तमाम नेक इंसान तंग नज़र नहीं हैं, बल्कि बहुत बड़ा दिल रखने वाले हैं, लेकिन हकीकत में आलिम दीन ही मेरी हिदायत की पैरवी पर कायम होकर खुदा की रज़ा पर चलने वाली तकवा की फितरत पर है, क्योंकि वो इंसान मुझे खुदा की इबादत में लगा हुआ है, जो कि सबसे आला मकसद हयात या मंजिल हयात है। इस तरह मौत तक तमाम अमाल को सिर्फ मेरे सहारे करने वाले वासुदेव यानी कृष्ण के जैसा अजीम इंसान बहुत सारे पैदा होने वाले इंसानों और उलमाए दीन में से कोई एक मुश्किल से होता है। देवता परस्ती, इंसान परस्ती और मखलूक परस्ती वाले शिर्क की वजूहात और अंजाम। ख्वाहिश परस्ती की वजह से बहुत सारे लोग खुदाई इल्म से गुमराह हो जाते हैं और फिर खुदाई कुदरत और इख्तियारात को काबू में करके या अपने हाथ में लेकर अपनी अलग अलग ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक खुदा को छोड़कर दूसरे जिन जिन देवताओं यानी फरिश्तों का सहारा लेते हैं, उन देवताओं का अपने आप खुद साख्ता कवानीन बनाकर उनकी पैरवी और अताअत करने लगते हैं। जो बंदा जिस मखलूक या देवता पर ईमान रख कर उसकी इबादत की ख्वाहिश और गुमान जाहिर करता है, मैं बिलाशुबा उसके उस गुमान के मुताबिक उस मखलूक या देवता पर ही उसके ईमान को और मजबूती से कायम कर देता हूँ। वो उस मखलूक पर ईमान रख कर उसमें अपने शऊर और गुमान को लगाकर उस मखलूक की इबादत शुरू करके उससे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की तवक्का करता है, तो बेशक मखलूक या देवता से मांगी हुई हर चीज हासिल कर लेता है, जबकि हकीकत यह है कि उस मखलूक या देवता से ख्वाहिश की गई चीजें मेरे जरिए ही उसको दी जाती हैं। लेकिन ये भी सच है
کہ देवताओं यानी फरिश्तों की खुशनुदी का अमल करके उनकी इबादत करने वाले मरने के बाद देवताओं के पास जाएंगे और उन कम अक्ल वाले लोगों का अज्र उनकी बर्बादी होगी, और मेरी इबादत करने वाले मरने के बाद जन्नत में मेरे पास ही आएंगे। खुदा कोई इंसान या मखलूक नहीं है। खुदा की सिफात। खुदा को कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकता। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि मेरी सबसे आला न तब्दील होने वाली और न खत्म होने वाली फितरत को न जानकर बेअक्ल लोग मुझ न दिखाई देने वाले को दिखाई देने वाली और गलती करने वाली मखलूक या इंसान मानते हैं। बेवकूफ़ लोग ये नहीं जानते कि मेरा ना दिखाई देना या छुपा हुआ होना इंसानों का इम्तिहान लेने से ताल्लुक़ रखता है, और मैं हर एक को अपनी तजल्ली भी नहीं दिखाता, और ये लोग मुझको दुनिया में ना पैदा होने वाला और लाफानी भी नहीं मानते। ऐ अर्जुन, मैं उन तमाम इंसानों को जानता हूँ जो माजी में गुजर चुके हैं और जो हाल में मौजूद हैं, और उनको भी जो मुस्तकबिल में आने वाले हैं, लेकिन मुझे कोई भी मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकता। तौहीद और ईमान के फ़वाइद। ईमान और मुकम्मल आमाल सालिहा राहत से बेजा मोहब्बत और मसाइब से बेजा नफरत का हल है। खुदा तमाम इंसानों का, देवताओं यानी फरिश्तों का और वही का हाकिम है। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि ऐ भारत यानी अर्जुन, तमाम इंसान पैदा होकर तनाव, बेचैनी, मायूसी और खौफ ही पाते हैं। तो ऐ परंतप यानी अर्जुन, इसकी वजह यह है कि ज़िद्दैन यानी राहत, दौलत, सेहत और कामयाबी वगैरह की ख्वाहिश, इसी तरह मसाइब, गरीबी, बीमारी और नाकामी वगैरह से नफरत इंसानों में बेजा मोहब्बत, तनाव और खौफ पैदा करती है। लेकिन जो मुझ एक खुदा पर पुख्ता ईमान रखते हैं और जिन इंसानों के गुनाह उनके अमाल सालिहा की वजह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, वो ज़िद्दैन यानी राहत और मसाइब यानी राहत से बेजा मोहब्बत और मसाइब से बेजा खौफ और तनाव से आज़ाद हो जाते हैं। जो लोग मेरी पनाह या सहारा लेते हैं, वो लोग खुदा की हकीकत को जान जाते हैं और मुकम्मल तौर पर खुदा के लिए हर अमल करने की कोशिश में भी लगे रहते हैं। ऐसे लोग बुढ़ापे और मौत के खौफ से आज़ाद हो जाते हैं। जो लोग मुझे तमाम इंसानों का हाकिम, तमाम देवताओं यानी फरिश्तों का हाकिम और मुंतजिम, इसी तरह मुझको ही तमाम अमल सालिहा या वही के हाकिम की हैसियत से भी जानते हैं, उनकी अक्ल खुदा के ईमान से हमेशा जुड़ी रहती है। यहाँ तक कि मौत जैसे बुरे वक्त में भी वो सिर्फ मुझे ही अपना खुदा जानते हुए पुरसुकून रहते हैं। 7वां बाब 7वां अध्याय खत्म हुआ।